اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے چیپٹر نمبر 2، لیکچر نمبر 2، چیپٹر نمبر 2 کھلاڑی کے اوصاف، کریکٹرسٹک آف اسپورٹس مین۔ اسپورٹس مین شپ کی تعریف کیجیے، نیز اچھے کھلاڑی کے اوصاف اور خصوصیات تحریر کیجیے۔ اچھا کھلاڑی اچھا انسان ہوتا ہے، اس کی روشنی میں اچھے کھلاڑی کے اوصاف تحریر کیجیے۔ یہ سوال بک میں دیا گیا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہ سوال سیم اسی طرح سے آئے۔ اس سوال کو مختلف طریقوں سے ایگزامینر جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے آپ لوگوں سے۔ بیسیکلی ہم آج پڑھیں گے کہ ایک کھلاڑی کے اندر کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، اور ایک اچھا کھلاڑی اچھا انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کسی بھی کھیل میں حصہ لینے والے کھلاڑی کو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ اسپورٹس مین کسے کہتے ہیں۔ اسپورٹس مین کسی بھی کھیل میں حصہ لینے والے کھلاڑی کو اسپورٹس مین کہتے ہیں۔ اسپورٹس مین شپ بڑی جامع اور وسیع معنی اصطلاح ہے۔ اس کے مفہوم کو ایک لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اصطلاح ایک فرد کے لیے ان ظاہری باطنی جذبات، احساسات اور اقدار پر محیط ہے جن کا وہ کھلے عام اظہار کرتا ہے۔ اب جو کچھ تھوڑا بہت ہم نے اسپورٹس مین شپ کے بارے میں یہ 2-3 لائنیں پڑھی ہیں، اس کی ڈیفینیشنز اب ہم پڑھتے ہیں کہ مختلف ماہرین نے، مفکرین نے اسپورٹس مین شپ کے اوپر کیا تعریفیں بیان کی ہیں۔ اسپورٹس مین شپ کی تعریفیں، ڈیفینیشنز آف اسپورٹس مین شپ۔ ایچ اے صوفی نے کہا، اسپورٹس مین شپ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے تحت دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر حقوق کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ یعنی اسپورٹس مین شپ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے تحت دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر حقوق کی نگہداشت کی جاتی ہے، بغیر کسی کے ساتھ بے انصافی کیے، اور تمام رولز کے قوانین کے مطابق ایک اسپورٹس کے جذبے کے تحت کھیلنا اسپورٹس مین شپ کہلاتا ہے۔ فیلڈ ایم پوسٹ نے کہا، اسپورٹس مین شپ عزت و احترام کی وہ خصوصیات ہیں جو راست طرز عمل، غیر جانبداری اور تعظیم و تکریم کا تقاضا کرتی ہیں۔ اچھے کھلاڑی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نظم و ضبط۔ ایک اچھے کھلاڑی کی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ نظم و ضبط، ضابطوں اور اصولوں کا پابند ہوتا ہے۔ نظم، ضابطے، اصول، قوانین، یہ ساری چیزیں جو کھیلوں کے قوانین ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب ایک کھلاڑی گراؤنڈ میں جاتا ہے تو وہ ان تمام قوانین کا پابند ہوتا ہے، اور انہی قوانین پر عمل کرتے ہوئے وہ کھیلوں میں حصہ لیتا ہے۔ کھیل میں وقت کی پابندی لازمی ہے۔ کھیل کے عائد کردہ قوانین کی پابندی، فرض شناسی، خوش اسلوبی اور نظم و ضبط کھلاڑی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اور یہ اوصاف کھلاڑی کے کردار میں پختگی پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 1 جو بیان کیا گیا ہے نظم و ضبط، کہ ایک کھلاڑی کے اندر نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ قوانین کی پابندی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، وقت کا بہت زیادہ پابند ہوتا ہے، اور تمام قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے کھیلوں کے تمام عائد کردہ قوانین کے پابندی میں حصہ لیتا ہے۔ یعنی ایک کھلاڑی کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اس میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، اطاعت اور فرض شناسی۔ اچھے کھلاڑی میں اطاعت اور فرض شناسی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ریفری، کپتان، کوچ اور مینیجر کے احکام کی تعمیل کو اولین سمجھتا ہے۔ جو کام اسے سونپا جاتا ہے وہ اسے بڑی خوش اسلوبی اور فرض شناسی سے سر انجام دیتا ہے۔ ایک اچھا کھلاڑی اوبیڈینٹ اور اپنے کام کے ساتھ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے۔ وہ چاہے وہ ریفری ہو، اس کے ساتھ جتنے بھی آفیشلز ہوتے ہیں، ریفری، کیپٹن، کوچ، مینیجر، وہ جو بھی کہتے ہیں کھیل سے متعلق، جو بھی احکامات اس کو دیتے ہیں اس کے اوپر ان کی وہ اطاعت کرتا ہے، اوبیڈینٹ ہو کر کام کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف ایک اچھا کھلاڑی ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اطاعت اور فرض شناس انسان بھی
बन जाता है। नंबर तीसरी खसूसियात इस्तक़लाल डिटर्मिनेशन। एक अच्छे खिलाड़ी की ये सिफ़त होती है कि वो साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज होता है। अगर एक खिलाड़ी के अंदर ये सिफ़त ना पाई जाए तो वो खेल के मैदान के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता। खेल के मैदान में जांफशानी से खेलता है, हारने के बावजूद पूरी जद्दोजहद करता है, अपने ख़िलाफ़ फ़ैसले को ख़त्ता पेशानी से और शिकस्त को कुशादा दिली से कबूल करता है। डिटरमिन्ड प्लेयर वही होता है जो कि हार के बाद भी जीत का हौसला रखता है, नाकामी का इस्तकबाल मुस्कुराहट से करता है और अपनी कोशिश असर नौ जारी रखता है। लाजमी नहीं है कि अगर एक इंसान अगर हार जाए तो उसके बाद वो अपनी कोशिश छोड़ दे। नहीं, आपने क्रिकेट टीम को देखा होगा, हॉकी टीम को देखा होगा, हारने के बावजूद उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है और वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दोबारा से इस चीज़ का कौशन दे रहे होते हैं कि हमने दोबारा मैदान में आना है, साबित कदमी और इस्तक़लाल के साथ दोबारा से मुकाबला करना है और जीत हासिल करनी है। इस खिलाड़ी के किरदार में इत्मीनान और इस्तक़लाल की एक झलक नज़र आती है। ये सारी चीज़ें इस बात को साबित करती हैं कि एक खिलाड़ी जो है वो मुस्तकिल मिजाज होता है, उसमें मुस्तकिल मिजाजी पाई जाती है, इस्तक़लाल पाया जाता है। नंबर 4 शाइस्तगी और ताउन। शाइस्तगी अच्छे खिलाड़ी की शख्सियत को चार चांद लगा देती है। वो दूसरे खिलाड़ियों के साथ ताउन करता है। अच्छा खिलाड़ी हमेशा शायकीन, इंतज़ामिया और खिलाड़ियों के साथ निहायत शाइस्तगी और एहतराम के साथ पेश आता है। नंबर 5 खुशतबई। खुशतबई खिलाड़ी का अहम तरीन वस्फ़ है। अच्छा खिलाड़ी हमेशा हशाश बशाश नज़र आता है। वो हर दिल अजीज़ होता है। वो हारते हुए खेल के माहौल को ख़राब नहीं करता। खिलाड़ी हमेशा खेल के दौरान खुश व खुर्रम रहता है। खिलाड़ी शिकस्त को फ़राख दिली से कबूल करता है और हार में शर्मिंदगी महसूस करता है। इस खुशतबई की 3 लाइनें जो मैंने अभी पढ़ी हैं, इसमें मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि एक खिलाड़ी ना सिर्फ खुश अखलाक बल्कि फ्रेश होकर, रिलैक्स होकर खेल खेलता है, खुश व खुर्रम रहता है और शिकस्त को फ़राख दिली से कबूल करता है। उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, ना ही उसको रोक बनाकर अपने दिल से लगा लेता है कि नहीं जी अब तो मैंने आगे जाना ही नहीं है। तो खिलाड़ी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हारने के बावजूद उसके अंदर जीत का जज्बा होता है और अखलाक के तमाम तकाज़े वो पूरे करता है। नंबर 6 क़ुव्वत फ़ैसला। एक अच्छा खिलाड़ी खेल के अलावा माशरे में मस्बत किरदार अदा करने की अहलियत रखता है और मौके की मुनासिबत से सही और बर वक्त फ़ैसले की क़ुव्वत से उसको हमेशा कामयाबी हमकिनार करती है। मैं दोबारा इसको रीड करूँगी। क़ुव्वत फ़ैसला। एक अच्छा खिलाड़ी खेल के अलावा माशरे में मस्बत किरदार अदा करने की अहलियत रखता है और मौके की मुनासिबत से सही और बर वक्त फ़ैसला करने की क़ुव्वत से उसको हमेशा कामयाबी मिलती है, यानी कामयाबी से वो हमकिनार होता है और अमली ज़िंदगी में भी नाकाम नहीं होता। एक खिलाड़ी जो ग्राउंड के अंदर खड़ा होकर क्राउड में मुकाबले के दौरान प्रेशर में, दबाव में एक सही फ़ैसला लेता है, उसके अंदर फ़ैसला लेने की क़ुव्वत होती है, तो आम तौर पर माशरे में वो एक बेहतरीन फ़ैसला लेने में देर नहीं करता, बल्कि वो एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करता है किसी भी किस्म का फ़ैसला लेने में। नंबर 7 क़ुव्वत बर्दाश्त। किसी सरगर्मी को बग़ैर थकावट के ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जारी रखने की सलाहियत को क़ुव्वत बर्दाश्त कहते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी में क़ुव्वत बर्दाश्त का होना बेहद ज़रूरी है। क़ुव्वत बर्दाश्त का तोफ़ैल ही मुकाबले के मैदान में ज़्यादा देर तक ठहर सकता है और बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकता है। अगर क़ुव्वत बर्दाश्त बेहतर हो तो थकन का एहसास नहीं होता। नंबर 8 है रफ्तार। एक अच्छे खिलाड़ी की खूबी है कि वह तेज़ रफ्तार हो, क्योंकि तेज़ रफ्तार खिलाड़ी के मजमूई कारकर्दगी में बुनियादी किरदार अदा करती है और उससे बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। अब ये बच्चे समझाने वाली बात है कि रफ्तार में उसकी स्पीड भी हो सकती है, उसका काम करने की स्पीड भी हो सकती है, उसके खेलने की रफ्तार भी हो सकती है, उसके हरकत करने की रफ्तार भी हो सकती है, उसके मूवमेंट की रफ्तार भी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो एक खिलाड़ी को बेहतरीन और इंडिविजुअल बनाती हैं। नंबर 9 है ताकत। जब कोई उज़ला किसी मुज़ाहिमत के ख़िलाफ़ इकाई वक्त में जो काम करता है उसे ताकत कहते हैं। अच्छे खिलाड़ी में ताकत का होना ज़रूरी है। किसी भी जिस्मानी सरगर्मी को सरअंजाम देने के लिए ताकत का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है।
ख़्वाह वो रोज़मर्रा ज़िंदगी से हो या किसी खेल से मुतल्लिक हो, ताकत खिलाड़ी को हरदम नया जज्बा और कारहाय नुमायाँ सरअंजाम देने के लिए नया वल्वला देती है, क्योंकि एक ताकतवर जिस्म में ही एक अच्छा जहन होता है। डेफिनेटली एक ताकतवर जिस्म ही एक ऐसी सरगर्मी कर सकता है कि जिसके अंदर रेजिस्ट किया जा सके, या आप उसमें अटैक कर सकें, हमला कर सकें। हमला करने से मुराद ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ मार कुटाई करनी है। खेल के मैदान में अगर आप गोल करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपके अंदर क़ुव्वत और ताकत का होना ज़रूरी है। एक बॉल को पास करने के लिए क़ुव्वत और ताकत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर एक खिलाड़ी के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है तो वो खिलाड़ी कामयाब नहीं हो सकता। एक इंसान के अलावा एक खिलाड़ी के अंदर ताकत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 10, लचक। अच्छे खिलाड़ी के जिस्म में लचक का होना ज़रूरी है। बावकार और ख़ूबसूरत हरकत भी लचक ही की मरहून मिन्नत है। अब लचक का मतलब ये नहीं है कि लचक का मतलब है बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। आपने क्रिकेट के मैदान में देखा होगा खिलाड़ियों को डाइव लगाते हुए, अगर आम रूटीन में हम लोग आम इंसान अगर गिर जाए तो मोच आ जाती है, कोई चोट लग जाती है या कोई पट्टा खिंच जाता है। लेकिन ये खिलाड़ी जब डाइव लगाते हैं, बॉल को पकड़ते हैं, कैच करते हुए आगे की तरफ गिरते हैं, साइड की तरफ गिरते हैं, बाज़ औक़ात कैच करते हुए इनकी गर्दन पर दबाव पड़ता है और ये बैकवर्ड भी हो जाते हैं, जिसको हम उल्टी कलाबाजी कहते हैं। इन तमाम के दौरान में इनको चोट क्यों नहीं लगती? इसकी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करने से इनके जिस्म के तमाम अज़ा में इतना ज़्यादा लचक पैदा हो चुकी होती है कि किसी भी किस्म की हरकती सरगर्मी के दौरान इनको लचक का फ़ायदा होता है। और खिलाड़ी जो है, बेहतरीन खिलाड़ी वही होता है जिसके जिस्म के अंदर लचक पाई जाती है। और इससे खिलाड़ी की कामत कहते हैं पोस्चर को, जिस्मानी साख्त को, और ये लचक खिलाड़ी की कामत की खूबसूरती में भी अहम किरदार अदा करती है। नंबर 11 है फ़नी महारत। एक अच्छे खिलाड़ी में फ़नी महारत का होना ज़रूरी है, क्योंकि तमाम मुकाबले फ़नी महारत से जीते जाते हैं। जो खिलाड़ी ज़्यादा फ़नी महारत रखता है वो मुकाबले में ज़्यादा बेहतर पोजीशन हासिल करेगा, और अच्छा खिलाड़ी बेहतरीन हिकमत अमली अख्तियार करने की खूबियाँ रखता है। अब फ़नी महारत क्या है कि अगर एक बैडमिंटन का प्लेयर है तो उसे बैडमिंटन के तमाम स्किल्स के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। ना सिर्फ इल्म होना ज़रूरी है बल्कि उसके ऊपर प्रैक्टिकली अबूर होना भी ज़रूरी है। यानी वो ये भी जानता हो कि इसकी बेहतरीन स्किल्स क्या हैं और इन स्किल्स को किस टाइम किस वक्त अप्लाई करना है। तो ये फ़नी महारत कहलाती है, और जिस खिलाड़ी में ये ज़्यादा फ़नी महारत हो वो खिलाड़ी मुकाबले में बेहतरीन पोजीशन हासिल करता है। अच्छा खिलाड़ी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी अख्तियार करने वाला भी कहलाता है कि एक अच्छा खिलाड़ी गेम के दौरान में हिकमत अमली भी अख्तियार करता है। यानी बाज़ का ऐसे स्किल्स तो ज़रूरी है, ताकत भी ज़रूरी है, स्किल भी ज़रूरी है, बाकी तमाम खूबियाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर साथ चलते हुए एक खिलाड़ी के अंदर हिकमत अमली का होना ज़रूरी है। मौके के ऊपर हिकमत अमली अख्तियार करना, स्ट्रेटजी बनाना एक बेहतरीन खिलाड़ी होने की दलील है। अल्लाह।